Hello students, welcome back. In today's lecture we are going to study about calculation of errors. Three types of errors we will study today: absolute error, mean error and relative error. Relative error can also be used to find percentage error. From now onwards, very important topics of our lectures are commencing. So it is important you pay attention to every part of the lecture and try to understand. There will be many problems you need to solve on this. And there is every chance that you may have a problem on errors in JEE, NEET or any other exams, and definitely in the board exams. So let us start. Students, you see this ring in front of you on the screen. I want to measure the diameter of this ring. What is the diameter of the ring? It is the measure of the longest side that you can find on the circle of the ring. Now, see, is this the longest side? We are going to measure the inner diameter. This ring can have an outer diameter as well as an inner diameter. If you are measuring the diameter from this end to this end, then you are measuring the outer diameter, but we will measure from inside, this end to this end. Okay, so let us see what reading we are getting. Suppose first time I measure and I get the reading to be about, let us see what we are getting. Can you see the reading? It is about 7.5 centimeters, right? Let's take one more reading. I will turn the ring slightly and then we will take the reading once again. This time I get approximately 7.6 centimeters. Again I turn the ring and I take one more reading. And this time I am getting how much? Let's see. Say I get 7.4 centimeters. Okay, let's see how do we calculate what is the correct value. So students, what we saw just now was the measurement of diameter of a ring. And we took three readings. Let us denote these readings by A1, A2, A3 and so on. So the first reading that we got was 7.5 centimeters. Second reading we got was, say, A2 is equal to, say, 7.6 centimeters. Third time we took the reading, we got 7.4 centimeters. Fourth time we take the reading, we get 7.5 centimeters. पांचवी बार हमने रीडिंग लिया, हमको मिला 7.6 सेंटीमीटर्स. हमने 5 रीडिंग्स लिया. अभी इनको रीडिंग्स बोलो या ऑब्जर्वेशंस बोलो. These are readings or observations. बच्चों अभी हम ये सारे रीडिंग्स का मीन अगर फाइंड करते हैं, एवरेज ऐसे लिखेंगे हम, ए मीन, और ऊपर ऐसा बार कर दो तो भी चलेगा. आपको पता है एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? सारी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे. सो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5. फिर हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमारे पास 5 वैल्यूज थी. क्या मिलेगा हमको? चलो देखते हैं. ये सारी वैल्यूज ऐड कर देंगे तो 7.5 प्लस 7.6 प्लस 7.4 प्लस 7.5 प्लस 7.6 डिवाइडेड बाय 5. व्हाट डू वी गेट? हमको मिलेगा ये 0.5 प्लस 6 11 प्लस ये 6 and 4 10 हो जाता है 15 20 26, फिर 35 37. तो 37.6 डिवाइडेड बाय 5 मिलता है हमको. नाउ 37.6 डिवाइडेड बाय 5 इज 7.52.
सो द नियरेस्ट वैल्यू इज 7.52, करेक्ट है ना? 7 2 15, 35, 36 बराबर। अब देखो बच्चों, ये जो 7.52 है उसमें ये लास्ट वाला 2 जो है वो कोई मीनिंग नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि हम हमारी सारी रीडिंग्स में डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट था, यानी कि हम सेंटीमीटर्स में मैक्सिमम 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। याद करो, मैंने इसके पहले वाले एक वीडियो में एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन एक्सप्लेन किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था प्रिसिशन यानी कितना रिजोल्यूशन तक हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि हमारी जो स्केल थी उसमें हम 0.1 सेंटीमीटर से ज्यादा रिजोल्यूशन नहीं मेजर कर सकते। हमारी स्केल का प्रिसिशन 0.1 सेंटीमीटर था, तो ये पीछे वाला 2 जो है वो मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस है बेटा, इनसिग्निफिकेंट है। हम क्या करेंगे आगे वाले किसी और एक बाद में और एक लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी करने वाले हैं, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में समझेंगे। राइट नाउ तो हम इस 2 को निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ये 2 को निकाल देता हूं तो मुझे नियरेस्ट वैल्यू क्या मिलती है, ए मीन की 7.5 सेंटीमीटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो ये जो रिंग था, ये रिंग का डायामीटर कितना है, 7.5 सेंटीमीटर है। अभी देखो, अगर कंपनी को हम कॉल करके पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने जो रिंग बनाया था इसका डायमीटर कितना, कंपनी बोलती है कि इसका डायमीटर 7.6 सेंटीमीटर है, तो हम ये बोलेंगे कि इस रिंग का डायमीटर का ट्रू वैल्यू 7.6 सेंटीमीटर है, ट्रू वैल्यू। लेकिन अगर हमको इसके डायमीटर का ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, ये जो मीन हमको मिला है इसको ट्रू वैल्यू कंसीडर करेंगे। सो जो मीन वैल्यू मिलती है इट इज ऑलमोस्ट नियरेस्ट द ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर, अगर हमको नहीं दिया है तो ट्रू वैल्यू। और ये सारी जो वैल्यूज है वो या तो ट्रू वैल्यू से थोड़ी ज्यादा है या तो थोड़ी कम है। फॉर एग्जांपल ये 7.6 जो है वो ट्रू वैल्यू से 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये ट्रू वैल्यू से 0.1 सेंटीमीटर कम है, ये इक्वल है, ये वैल्यू भी इक्वल है, और ये लास्ट वाली वैल्यू जो है फिर से 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो हमारे जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो ट्रू वैल्यू से थोड़े ज्यादा हो सकते हैं या थोड़े कम हो सकते हैं। हमने अभी तक जो कैलकुलेट किया है वो है मीन वैल्यू। अब हमारे कैलकुलेशन में कुछ तो एरर होगा, हमने पहले स्टडी किया है कि हर मेजरमेंट में थोड़ा सा एरर होता है। अब हमको ये पता लगाना है कि हमारे मेजरमेंट्स में एरर कितना है। तो इट इज वेरी सिंपल, एक काम करेंगे, हमारा जो मीन वैल्यू है उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है A1, A2, A3 वो सारी वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मींस अगर मैं 7.5 में से 7.5 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है। एक काम करो बच्चों, मैं एक्सप्लेनेशन करूं उससे पहले ये आप जरा कॉपी कर लो, सो दैट बाद में मुझे बोर्ड रब करना हो तो यू कैन हैव द वैल्यूज इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको अभी एरर पता लगाना है। हमारा एरर कैसे फाइंड करेंगे हम, ये जो A1 है, A1 में से मैं A मीन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, A1 की वैल्यू 7.5 थी, माइनस 7.5 तो मुझे क्या मिल गया, 0। दिस वैल्यू आई वुड डिनोट एज डेल्टा A1 0, डेल्टा A2 what we will do is 7.6 minus 7.5, so we get 0.1 centimeter, means this is 0 centimeters, this is 0.1 centimeters, means हमारी ये जो वैल्यू है वो मीन वैल्यू से 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा है, पॉजिटिव एरर है ये। फिर डेल्टा A3 हमको क्या मिलेगा, तो अब मैं ये सब्ट्रैक्शन बताने की बजाय डायरेक्टली वैल्यूज लिख दूंगा। I will write 0.1 centimeter. Delta A3 will be 7.4 minus 7.5. We will get negative 0.1 centimeter. This is a negative error. Positive error, negative error. Negative error का मतलब क्या है कि हमारी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से छोटी है। यहां पर एरर कितना मिलेगा, 0। So delta A4 is equal to 0. Delta A5 is equal to 7.6 minus 7.5, so 0.1 सेंटीमीटर। ये एरर कैसा है, पॉजिटिव एरर है। अब बच्चों हमको जो है ना
ये एरर्स में इंटरेस्ट नहीं है, हमको इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज में इंटरेस्ट है. These values are called as errors. But if I want to find out absolute errors, तो हम क्या करेंगे? Absolute errors are denoted as delta A. Mod A. Mod delta A. ये जो दो लाइंस है वर्टिकल लाइंस, इनको हम बोलते हैं मॉड, मॉड्यूलस. वी ऑल्सो कॉल इट एज मॉड्यूलस. यू विल बी स्टडिंग अबाउट मॉड्यूलस. आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है थोड़ा सा मॉड्यूलस के बारे में, और 11th मैथमेटिक्स में. आप इसको ज्यादा डिटेल्स में स्टडी करोगे तो मॉड्यूलस वैल्यू जो होती है, या मॉड वैल्यू, शॉर्ट में हमको बोलना है तो हम मॉड वैल्यू बोल सकते हैं. तो डेल्टा A1 का मॉड वैल्यू जो है डेल्टा A1, ये वैल्यू 0 है तो हम सिर्फ 0 लिखेंगे, हम नेगेटिव साइन को ओमिट कर देंगे. बस यही मॉड वैल्यू का मीनिंग होता है. डेल्टा A2 की मॉड वैल्यू क्या होती है? ये 0.1 है तो हम 0.1 ही लिखेंगे. डेल्टा A3, अब ये नेगेटिव वैल्यू, बस मॉड वैल्यू में हमको क्या करना है? नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि एरर कितना है. तो डेल्टा A3 0.1, डेल्टा A4 की मॉड वैल्यू है 0, डेल्टा A5 की मॉड वैल्यू है 0.1. तो हमको एरर कितना मिला है? ये एब्सोल्यूट एरर्स. तो डेल्टा A1, ये जो हम मॉड लगा देते हैं ना, उसको मॉड्यूलस बोलते हैं या एब्सोल्यूट भी बोलते हैं. तो बच्चों याद रखो, एब्सोल्यूट क्या होता है? नेगेटिव साइन को आप ओमिट कर दो तो आपको जो वैल्यू मिली है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू जो लिखते हैं आप, वो हो गए आपकी एब्सोल्यूट एरर्स. अभी ये सारे जो एब्सोल्यूट एरर मिले हैं, उनका अगर हम मीन फाइंड करते हैं तो हमको जो मिलेगा वो मीन एब्सोल्यूट एरर. इसको हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा ए मीन. अब बच्चों आपके इस फर्स्ट चैप्टर में जहां भी डेल्टा मिलेगा आपको उसको एरर कंसीडर करना है. डेल्टा ए मीन, और इसको अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लगा देता हूं तो ये हो गया मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स. ये एब्सोल्यूट एरर है और उसका जो मीन है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं. सिंपल है, जैसे हमने ये मीन फाइंड किया था वैसे ये मीन फाइंड करेंगे. तो क्या करेंगे? सारी की सारी पांचों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे. ये जो 5 वैल्यूज है, 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 divided by 5. So what do we get? This will be 0.3 divided by 5. 0.06 is our mean error, mean absolute error. तो दो बातें आपने अभी तक सीखी है, तीन पॉइंट सीखी है आपने. सबसे पहले तो हमने जो रीडिंग्स लिए हैं, ऑब्जर्वेशंस, ये हमारे ऑब्जर्वेशंस है. हमने कौन कौन से वर्ड्स अभी तक स्टडी किए बच्चों ये समझ लो आप. पहला वर्ड हमने जो स्टडी किया है ऑब्जर्वेशंस. फिर हमने सारे ऑब्जर्वेशंस का मीन फाइंड किया, उसको हम बोलेंगे मीन ऑब्जर्वेशंस. इनको आप रीडिंग्स भी बोल सकते हो, ये भी रीडिंग्स है. फिर हमने क्या किया? ये सारे रीडिंग्स में से मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो हमको क्या मिल गया? एरर्स मिल गया. तो हमने एरर्स स्टडी किया. एरर्स के बाद हमने क्या स्टडी किया? मैं ये सारे नाम यहां पर लिख दूं फिर से, तो नीचे देखने में दिक्कत ना हो. रीडिंग्स, देन मीन readings can also be called observations, then errors, absolute errors.
एब्सोल्यूट एरर्स में क्या करते हैं, ये जो रीडिंग्स है, ये जो एरर्स है, उसमें अगर नेगेटिव साइन आती है तो उसको निकाल देते हैं. एंड फाइनली वी स्टडीड मीन एब्सोल्यूट एरर. तो हमको ये जो सारे एरर्स का, एब्सोल्यूट एरर्स का हमने मीन लिया, वो क्या मिला 0.06. वो हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर. और अब फाइनली अगर मुझे ये मीन एब्सोल्यूट एरर्स को मीन रीडिंग से डिवाइड करना है, अगर मेरा जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको मैं मीन रीडिंग से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा रिलेटिव एरर. और उसका फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन. अभी हमारे प्रॉब्लम में बच्चों हमको डेल्टा ए मीन का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिला था 0.06 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मैंने अभी रब कर दी, आपको पता थी कितनी मिली थी हमको 7.5. सो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं हमको क्या मिलेगा, लेट अस सी. अगर मैं डेसिमल पॉइंट निकाल देता हूं तो मुझे मिलेगा 6/750. इफ वी डिवाइड दिस बाय 3 then this is 3 2s are 3 150s are 2 divided by 15 is 0.1 then 0.3 and so on. वो चलता रहेगा. So this is, ये जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 0.0133 and so on. हम सिर्फ 2 डिजिट्स लेंगे तो 0.013 मिलता है. So this value is called as relative error. What is the formula for relative error? Absolute value of delta A mean divided by A mean. तो अगर हमारा जो मीन एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको हम मीन ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा रिलेटिव एरर. अब ये रिलेटिव एरर्स को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो हमको मिलेगा परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर. और परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको इसकी जो वैल्यू मिली थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोर्ड अप कर दिया, वो वैल्यू कितनी मिली थी हमको 0.013 और एक 3 रहने देता हूं मैं. और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे परसेंटेज एरर मिल जाएगा 1.33%. ये हो गया हमारा एरर्स का कैलकुलेशन. तो हमने अभी तक जो नए वर्ड्स आज के लेक्चर में स्टडी किए हैं वो कौन कौन से वर्ड्स है, चलो याद कर लेते हैं. सबसे पहले तो हमने हमारे एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे रीडिंग्स लिए. वो रीडिंग्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस. फिर हमने क्या किया, वो सारे ऑब्जर्वेशंस का मीन फाइंड किया. अभी मीन कैसे फाइंड करते हैं, तो हम सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो हमको मिल गया मीन ऑब्जर्वेशंस या मीन रीडिंग. फिर हमने क्या किया, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन वैल्यू को माइनस किया तो हमको एरर्स मिल गए. ये एरर्स में से हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं तो हमको जो मिलता है वो है एब्सोल्यूट एरर्स. फिर सारे एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एरर्स कर दिया तो हमको क्या मिल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर डिनोटेड बाय डेल्टा ए मीन. और फिर बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर को हमने हमारे मीन रीडिंग से डिवाइड कर दिया तो हमको मिल गया रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज 100 will give you percentage error. So that is about calculation of errors. One more topic you need to understand, errors को ऐड कैसे करने का, errors को सब्ट्रैक्ट कैसे करने का, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करने का, वो हम इसके थियरी के नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. लेकिन उससे पहले इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करूंगा सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली हाउ टू कैलकुलेट एरर्स. Very soon in the next video we start with calculation of errors, examples from our textbook. See you soon.